Hello everyone and welcome back to my channel BioBeaker. So in today's video we're gonna solve this post-entrance test question paper conducted by BHU for the course MSc Plant Biotechnology. This question paper is actually of 2019, but if you're looking for the latest one, 2021 question paper, please refer to my previous video. I've already posted the question paper of 2021 along with its solution, and you can find the link to the video in the description of this video. So let's proceed today's video of this question paper of 2019 for MSc Plant Biotechnology program. The question paper actually has 120 questions in it, and we're gonna solve it according to the series. So let's start the question paper. Question number 1. The interaction between the nonpolar molecules in a polar solvent are called. Options are hydrophobic interaction, hydrophilic interaction, van der Waals interaction, and electrostatic interaction. Now we know the interaction, or we can say the force between the non-polar molecules like long chains of hydrocarbons and a polar solvent like water. What is a perfect example of polar solvent? So the force that exists between them is actually hydrophobic in nature. So option 1 is correct, hydrophobic interaction. Now let's go through the other options as well. So hydrophobic interaction, as I've already told, is an interaction between polar solvents like water and hydrophobes, which are non-polar molecules. And a perfect example of it is mixing of water and fat. Now water is a polar solvent, and fat we know is made of glycerol and fatty acids. And fatty acids are made up of these long chains of hydrocarbons, which are non-polar in nature. Next is hydrophilic interaction. It is interaction between polar solvent and polar molecules. Example हम इसका देखें तो alcohol is an example of hydrophilic interaction. Next is van der Waals interaction. Van der Waals is actually a distant dependent interaction between neutral molecules. Neutral molecules हम बोले तो जिन पे चार्ज नहीं है, कोई भी atoms consider कर लीजिए. These are neutral molecules. इनके examples बोले या फिर जो types होते हैं van der Waals interaction में हम पढ़ते हैं. Dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction. These are all types of van der Waals interaction. Next is electrostatic interaction. It is an interaction between charged molecules. Okay. Now question 2 is, which form of DNA has longest pitch? Options are bDNA, cDNA, aDNA, and zDNA. Now DNA exists in actually several forms, we can say. So the longest pitch is actually found in zDNA, Z form of DNA. Now let's see what pitch is. So pitch is a distance along the helical axis for one complete helix turn in DNA. We know that DNA is double helical in nature, and all two strands running parallel to each other are coiled in right-handed or left-handed manner. So the distance between one turn जो होता है, we can see from the diagram. We see the distance between one turn बोले या फिर consecutive distance between major groove plus minor groove जो है distance you can see. This is actually जो DNA आपको picture में दिख रहा है, it is of bDNA, B form of DNA. Now we can see that major groove and one minor groove constitute one pitch, जो कि bDNA में होती है 3.4 nanometer या फिर बोले 34 angstrom. So this is the pitch we are talking about. Now longest pitch exists in zDNA. बाकी जो फॉर्म्स हैं उनकी भी हम पिच की एक बार देख लेते हैं, लेंथ क्या होती है. bDNA has 3.4 nanometer, cDNA 3.1 nanometer, aDNA की जो पिच होती है it is 2.8 nanometer in size, and zDNA has longest pitch which is 4.5 nanometer. Question 3. Most of the biological oxidations occur without direct participation of oxygen. Options are true, option 2, false, option 3, no process like biological oxidation, option 4, in biological system only chemical reduction occur. So correct answer is option 1, true. We know that most of the biological oxidations, they occur without participation of oxygen. Like we can describe
oxidation reduction in forms of electron transfer also. Like donation of electron is oxidation, and accepting of electron is reduction. So we don't actually need oxygen for process of oxidation and reduction. So option 1 is true. Option 1 is correct. Moving to question number 4. The role of Rec-A protein is, options are homologous recombination, option 2, initiation of DNA replication, option 3, synthesis of lagging strand, and option 4 is increase the processivity of DNA polymerase 3. Now this RAC-A protein is actually involved in proofreading. So proofreading, so correct option हो जाएगा हमारा option 1 in homologous recombination, because homologous recombination is a part of proofreading. Other options भी देख लेते हैं. Initiation of DNA replication. Initiation, we know promoter is involved in initiation of DNA replication. Option 3 है synthesis of lagging strand. Lagging strand DNA polymerase is involved in that. Increase the processivity of DNA polymerase 3. यहाँ पे we have clamp जो होते हैं हमारे पास replication में, they increase the processivity of DNA polymerase. So option 1 is correct, homologous recombination. Moving to question number 5. The DNA polymerase has exonuclease activity. Options are 3' to 5', option 2 5' to 3', option 3 3' to 3', and option 4 is 5' to 5'. Now if you pay attention, यहाँ पे exonuclease activity पूछी है, ना कि polymerase activity पूछी है. और exonuclease activity मतलब proof reading के direction क्या होती है. So correct answer is option 1, 3' to 5'. हमसे अगर polymerase activity पूछी होती, which is we know that replication हमारा 5' to 3' के डायरेक्शन में ही होता है, बट यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पूछी है जो कि हमारी प्रूफ रीडिंग की होती है एक्टिविटी. प्रूफ रीडिंग हमेशा ऑपोजिट में होती है एप्लीकेशन के. एप्लीकेशन हमारा 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है, तो प्रूफ रीडिंग हमारी होती है 3' to 5'. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 3' to 5'. Moving to question number 6. Assume two conditions: A, crossing over present, and B, absent during cell division. The two alleles of a gene will segregate during dash and dash respectively. Now we have two conditions है हमारे पास. दोनों ही ऑप्शन से देखें तो दोनों कंडीशंस हमारे मियोसिस की हैं, बट ए जो है उसमें हमारा क्रॉसिंग ओवर है और बी में एब्सेंट है. सो वी नो दैट क्रॉसिंग ओवर हमारे कहाँ होती है, मियोसिस 1 में होती है, मियोसिस 2 में नहीं होती है, मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2. क्वेश्चन नंबर 7. एग्जाम्पल्स ऑफ हेक्साप्लॉइड क्रॉप स्पीशीज आर. ऑप्शंस है हमारे पास ब्रेड व्हीट, क्राइसेंथेमम, ट्राइटिकेल, ओट. ऑप्शन 2 में फिर से ब्रेड व्हीट है, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी, ओट. ऑप्शन 3 इज ब्रेड व्हीट, क्राइसेंथेमम, स्ट्रॉबेरी, ओट. ऑप्शन 4 इज ब्रेड व्हीट, कोकोनट, कॉटन, पीनट एंड ट्राइटिकेल. नाउ इफ यू रिमेंबर, जो हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी हमसे प्लॉइडी के रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हमें मिले थे. सो मैंने आपको पहले बोला था कि प्लॉइडी जो है क्रॉप स्पीशीज के, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. जो हेक्साप्लॉइड क्रॉप्स होती है हमारी, वो ब्रेड व्हीट है, क्राइसेंथेमम, ट्राइटिकेल एंड ओट्स. बाकी जो क्रॉप्स हमें गिवन है उनकी भी हम एक बार प्लॉइडी देख लेते हैं. नाउ शुगर केन इज ऑक्टोप्लॉइड इन नेचर. स्ट्रॉबेरी जो है इट एग्जिस्ट इन वेरियस लेवल ऑफ प्लॉइडी. कॉटन हमको मिलता है नॉर्मली डिप्लॉइड इन टेट्राप्लॉइड स्टेट में. सो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा. ऑप्शन 1 में जो भी क्रॉप्स हमको गिवन है, दे आर ऑल हेक्साप्लॉइड. Question number 8 is triticale is a cross between wheat and rye. Options है हमारे पास option 1 autotetraploid, option 2 allotetraploid, option 3 autohexaploid and option 4 is allohexaploid. Now ये जो है mutation वाले question है, with the help of induced mutation we can develop various varieties of different crops. तो यहाँ पे हमने induced mutation में polyploidy से ये जो है triticale की variety जो develop की है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी प्लॉइडी है यहाँ पे. सो इट शोज ऑटो टेट्राप्लॉइड प्लॉइडी. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी.
So polyploidy is actually, it is a type of induced mutation in which an organism has more than two complete sets of chromosomes in every cell. Now we know normally an organism have two sets of chromosome, but induced mutation से we can increase these sets of chromosome, और अगर ये दो से ज़्यादा हो जाए then that condition is known as polyploidy. पॉलीप्लॉइडी के टाइप में हम पढ़ते हैं ऑटोप्लॉइडी एंड एलोप्लॉइडी. ऑटोप्लॉइडी में क्या होता है, व्हेन सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड. जैसे हम बोले ट्राइटिकेल ने वीट से क्रोमोसोम ए लिया है और राई से बी लिया है, बट यहाँ पे जो नंबर है वो बस ए का इंक्रीज हुआ है, लेट्स से दैट फॉर एग्जांपल. तो ये ऑटोप्लॉइडी हो जाएगी. एलोप्लॉइडी में क्या होता है, two different sets of chromosome अगर increase हो then that condition is known as alloploidy. So triticale shows all autoploidy. So option 1 is correct. Autotetraploid. Question number 9. In genetic engineering, a chimera is, options are a plasmid that contains foreign DNA. Option 2, an enzyme that links DNA molecule. Option 3, a virus that infects bacteria. And option 4 is a fungi. So we know chimera जो है वो हमारा option 1 सही हो जाएगा. It is a plasmid that contain foreign DNA. So option 1 is correct. बाकी options भी देख लेते हैं. An enzyme that link DNA molecule, तो वो ligase होता है. Ligase links DNA molecules with each other. Option 3 है a virus that infects bacteria, तो इन viruses को हम bacteriophage बोलते हैं. Option 4 तो fungi है, so chimera is not a fungi obviously. Moving to question number 10. जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस स्टेट दैट. नाउ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था 2021 में. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. जीन फॉर जीन क्या है, यही पूछा गया था हमसे. ऑप्शन 1 इज फॉर ईच रेजिस्टेंस जीन इज gene in the host there is a corresponding gene for virulence in the pathogen conferring resistance and vice versa. Option 2 is for each resistance gene in the host there is a corresponding gene for avirulence in the pathogen conferring resistance and vice versa. Option 3 बोल रहा है for each resistance gene in the host there is a corresponding gene for aggressiveness. तो aggressiveness का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है. Gene for gene hypothesis we talk about virulence and avirulence. Option 2 is correct. Gene for gene hypothesis, it states that for each resistance gene in the host there is a corresponding gene for avirulence in the pathogen conferring resistance and vice versa. Question number 11. Assembling multiple desirable genes from multiple parents into a single genotype for a specific trait is known as, options है हमारे पास. Option 1 multiple resistance, option 2 multiple variety, option 3 gene interaction, option 4 is gene pyramiding. तो बहुत सारे मल्टीपल जीन्स को असेंबल करना डिफरेंट पेरेंट से लेके सिंगल जीनोटाइप बनाने के लिए उसको हम जीन पिरामिडिंग बोलते हैं एक्चुअली. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जीन पिरामिडिंग. क्वेश्चन नंबर 12. न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस इज अ मेजर डिजीज ऑफ, ऑप्शंस है हमारे पास सिल्कवॉर्म, एफिड, जेसिड, मेगट. न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस जो है 12th में पढ़ते हैं आप लोग, एनसीईआरटी में इसका क्लियर एग्जांपल दिया हुआ है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इट कॉजेज डिजीज इन सिल्कवॉर्म्स. Question number 13. Which of the following is fumigant and stomach action? Option 1 है हमारे पास imidacloprid, option 2 thiamethoxam, option 3 indoxacarb and option 4 is spinosad. तो fumigant भी होना चाहिए. These are actual examples of fungicides. Fumigant होना चाहिए एक्शन, मतलब फ्यूम से एक्शन होना चाहिए, एंड इंसेक्ट है या पेस्ट है उसके स्टमक पे एक्शन होना चाहिए इसका. तो जो फर्स्ट और सेकंड है हमारे पास इमिडाक्लोप्रिड एंड थायोमेथोक्सम, दे हैव स्टमक एक्शन. बाकी जो है हमारे पास थर्ड, फोर्थ, इंडोक्साकार्ब एंड स्पिनोसाड, इनका जो एक्शन होता है नर्वस सिस्टम, दे मेनली अटैक नर्वस सिस्टम ऑफ द पेस्ट. तो हमारा जो है ऑप्शन 1 या 2 में से करेक्ट होगा, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट विच वन. फ्यूमिगेटरी इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे यहाँ पे. नंबर 14. Which of the following is major pest of paddy? ऑप्शन है हमारे पास चिलो केटलस, ऑप्शन 2 सिटोफिलस और आइजा, ऑप्शन 3 नील पर्वता ल्यूगियंस, ऑप्शन 4 एथेरिगोना सोकैट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 नील पर्वता ल्यूगियंस. सेकेंड ऑप्शन से कंफ्यूज मत करना इसको और आइजा देख के कि, और आइजा जो है पेडी को ही बोलते हैं ऑब्वियसली.
राइस को राइजा बोलते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमसे यहाँ पे मेजर पेस्ट पूछा है, मेजर जो है हमारा थर्ड वाला होता है। सेकंड वाला जो है सीटोफिलस और राइजा, ये भी एक पेस्ट है पैडी फील्ड्स पे, बट मेजर वाला थर्ड है अपना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नील पर्वता ल्यूगियंस। क्वेश्चन नंबर 15, फेरोमोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 thoracic gland, ऑप्शन 2 न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ऑप्शन 3 ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान देना, यहाँ पे सिंथेसाइज्ड पूछा है ना कि सिक्रेटेड। सिक्रेटेड बोलते वी कैन गो फॉर ऑल ऑफ द अबव, बट सिंथेसाइज क्या करता है, सिंथेसाइज यहाँ पे सिर्फ होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, मॉल्टिंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 कॉर्पोरा अलाटा, ऑप्शन 2 ब्रेन, ऑप्शन 3 न्यूरोसेक्रेटरी सेल एंड ऑप्शन 4 इज प्रोथोरैसिक ग्लैंड। सो मॉल्टिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, प्रोथोरैसिक ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17, कल्टीवेशन ऑफ लथारस इन पेरीफील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 मल्टीपल क्रॉपिंग, ऑप्शन 2 रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन 3 इंटर क्रॉपिंग एंड ऑप्शन 4 इज मिक्स क्रॉपिंग। ऑप्शंस आप देखें तो ये सारे जो है मल्टीपल क्रॉपिंग के ही टाइप हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना। पर यहाँ पे जो वरी कर रहा है इज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ प्लांटेशन, हम कब किसको प्लांट कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, लथारस इन पेडीफील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ रिले क्रॉपिंग। अब रिले क्रॉपिंग में होता क्या है, it is a method of multiple cropping where one crop is seeded into standing second crop well before harvesting of second crop। हमारे पास हमारी जो है क्रॉप ऑलरेडी है स्टैंडिंग में, हार्वेस्ट नहीं किया है, उसको हार्वेस्ट करने से जस्ट पहले हम सेकेंड क्रॉप को हम उसमें क्या करा देते हैं, प्लांट करा देते हैं। तो ये होता है अपना रिले क्रॉप एग्जांपल है लथारस एंड पेडी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 18, the sub1 gene has been introduced in mega varieties of, option 1 rice, option 2 wheat, option 3 pigeon pea and option 4 is maize। सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम 2021 में आया था, रिपीट हुआ था फिर से। सब1 जीन ही पूछा था हमसे, कौन से क्रॉप में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है, यही चीज पूछी गई थी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइस। सब1 जीन जो है हमने राइस में इंट्रोड्यूस कराई है। Question number 19. The food or fortified food products that not only supplements the diet but also assist in treating or preventing disease, so provides medical benefits as well. Such products are known as, options है हमारे पास। Option 1 pharmaceuticals, option 2 ultraceuticals, option 3 cosmeceuticals and option 4 nutraceuticals। तो हमसे यहाँ पूछा है कि हम जो है प्रोडक्ट्स को भी also use as food and fortified products। फिर है दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। सो ऑप्शन 4 जो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल्स क्या है, फार्मास्यूटिकल्स भी नो हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन बोले, वी ऑब्टेन ड्रग्स एंड मेडिसिन which are required for curing disease are related to pharmaceuticals। Ultraceuticals I am not sure about it। Cosmeceuticals में आता है cosmetic products, it's related to cosmetic having bioactive ingredients in them which are used for health benefits। So cosmeceutical is related to cosmetic products। और food और nutrients से हम देखें तो nutraceutical is related, so option 4 is correct, nutraceuticals। Moving to question number 20, if two genes A and B are linked under such condition and a single crossing over occur between these two genes in all the microspore mother cell, what will be the percentage of pollens having AB recombinant? ऑप्शंस है हमारे पास 100, 25, 50 एंड 10। नाउ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिंकेज भी हो रहा है, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज नहीं है ये। तो हम यहाँ पे ए और बी को सिस कंडीशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। ब्रैकेट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि नॉर्मली हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, बट डिवीजन के फॉर्म में हम सिसर ट्रांस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस मतलब देखा जाए तो होमोजाइगस, एक तरीके से होमोजाइगस कंडीशन में हमारी अलील्स। सो कैपिटल ए कैपिटल बी को तो हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी से।
तो यहाँ पे जो हमारा F1 मिलेगी वो हमको कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b मिलेगी। यहाँ से अगर हम गैमीट्स देखें तो हमें 4 गैमीट मिलेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b एंड स्मॉल a कैपिटल B। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल b रिकॉम्बिनेंट जो हमको मिलेगा उसका परसेंटेज। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 21, इन हनी बीज द मेल्स आर, ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 1 XX, ऑप्शन 2 XY, ऑप्शन 3 हेप्लॉइड एंड ऑप्शन 4 इज टेट्राप्लॉइड। नाउ हमको पता है कि हनी बी के जो मेल्स होते हैं दे आर हेप्लॉइड इन नेचर। एक बार ब्रीफ में जल्दी से हनी बी का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सो मेल्स आर हेप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर जो है N से हमने डोनेट किया है हेप्लॉइड कंडीशन को, 16 होते हैं। फीमेल इज डिप्लॉयड इन नेचर, so 2N इज 32। मेल ने माइटोसिस से गेमीट्स बनाए स्मॉल n, फीमेल ने मियोसिस से गेमीट्स बनाए स्मॉल n। तो यहाँ पे देखा जाए तो गेमीट्स जो है स्मॉल n, जाइगोट हमारा जो बनेगा यहाँ पे फ्यूजन से डिप्लॉयड बनेगा। अगर डिप्लॉयड बन रहा है यहाँ पे फ्यूजन से मेल से गेमेट आ रहा है, फीमेल से गेमेट आ रहा है, तो उससे जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो फीमेल होगी, जिसमें या तो वो क्वीन होगी या फिर वर्कर बी होगी। और डिपेंड करेगा कि वो क्वीन है या वर्कर बी उनके फूड मटेरियल के बेसिस पे। अगर रॉयल जेली फीड करा रहे हैं तो फिर क्वीन का फॉर्मेशन होगा, और अगर बी ब्रेड फीड करा रहे हैं तो फिर वर्कर बी बनेगी। वाइल कुछ जो गेमीट्स होते हैं यहाँ पे हमारे फीमेल के जो फॉर्म हो रहे हैं हेप्लॉइड, वो जाइगोट ना बना के डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस करके ड्रोन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसीलिए जो अपने यहाँ पे ड्रोन्स हैं या फिर मेल हम बोले वो हेप्लॉइड ही रह जाते हैं। इस कंडीशन को हम अरिनोटॉकी भी बोलते हैं, डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस से ड्रोन का फॉर्मेशन हो जाना। तो हनी बी के मेल्स आर हेप्लॉइड इन नेचर, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question number 22, XYZ system of hybrid crop production is done in which crop? Options है हमारे पास option 1 rice, option 2 wheat, option 3 sorghum and option 4 is maize. So this XYZ system of hybrid crop production is seen in wheat, so option 2 is correct. तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं ये सिस्टम होता क्या है XYZ system। So XYZ system is used for the production of hybrid seeds by using a gene for pollen fertility and gene for a phenotype marker. Phenotype marker हम consider कर सकते हैं like blue color aileron layer को हम use कर सकते हैं as a phenotype marker. So इस तरह से हम hybrid seeds बनाते हैं। सिस्टम को हमने नाम दिया XYZ system। Question number 23. For rapid generation advancement without selection in self-pollinated crop is, तो कौन से मेथड में हम सिलेक्शन नहीं करते हैं? सो ऑप्शंस है हमारे पास पेडिग्री मेथड, प्योर लाइन मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो एक तो यहाँ पे आरजीए हम करा रहे हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन वाला स्टेप को हटा रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा अपना, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। यहाँ पे हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं सीड्स को। So in this method, only one seed is selected randomly from each plant in F1 and subsequent generations as well. While बाकी options देखें तो हम pedigree method देखें या pure line method देखें, यहाँ पे हम selection वाले step को छोड़ते नहीं है। We carefully select the prominent progeny obtained after crossing the selected parent species. तो एक बार ये RGA क्या होता है ये भी देख लेते हैं, rapid generation advancement. So this protocol enables the rapid generation of homozygous lines and increase the number of crop generation per year, enhancing the rate of genetic gain and reducing the varietal breeding time. So RGA बस simply हमें number of crops per generation को increase करने के लिए use में लिया जाता है for rapid generation of homozygous line. Question number 24. The process of transfer of useful genes from exotic or wild type into agronomically accepted background is called as, options है अपने पास recurrent selection, option 2 reverse genetics, option 3 is pre-breeding and option 4 is transgressive breeding. So correct answer is option 3 pre-breeding. Pre-breeding में हम ऐसा करते हैं, we transfer useful genes from exotic या फिर wild type बोले to agronomically accepted background.
Question number 25. Ratna variety of mango is developed from the cross of. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था 2021 में. रत्ना वैरायटी जो है मैंगो की वो किससे डेवलप होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अल्फोंसो एंड नीलम. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट? ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन 1 इज मैंगो, ऑप्शन 2 इज एप्पल, ऑप्शन 3 इज बनाना एंड ऑप्शन 4 इज लीची. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है लीची. लीची इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट. अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं एक बार. नॉन क्लाइमेक्टेरिक एंड क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स क्या होते हैं? So the climacteric is a stage of fruit ripening associated with increased ethylene production and rise in cellular respiration. Rise की spelling थोड़ी गलत है यहाँ पे. या फिर बोले increase in cellular respiration. तो climacteric fruits में हम इथाइलिन की हेल्प से फ्रूट की आर्टिफिशियल राइपनिंग करा रहे हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा फ्रूट इसमें से क्लाइमेक्टेरिक नहीं है. सो लीची जो है उसकी हम नेचुरली कराते हैं राइपनिंग. लीची में हम इथाइलिन इंड्यूस्ड राइपनिंग नहीं कराते हैं. So option 4 is correct, lychee. Question 27. Fruit of coconut is option 1 berry, option 2 drupe, option 3 nut and option 4 is pome. ये तो सबको पता होना चाहिए. 11th 12th में ही देख लेते हैं ये चीजें हम. कोकोनट जो होता है अपना ड्रूप होता है. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Question number 28. Gladiolus is commercially propagated by. Option 1 is corms, option 2 is bulbs, option 3 stem cutting, option 4 rhizomes. So ये जो आप देखा जाए, so these are all modifications of stem. Gladiolus हमारा plant है और हमसे पूछा है कि कौन सा stem modification इसमें मिलता है for propagation. So correct answer is option 1, corm. Gladiolus is commercially propagated by corms. एक बार देख लेते हैं सब modifications हैं क्या. ये हमारे सारे जो है ना actually these are underground stem modification actually. So corms क्या होता है? Corm is a massive vertical growing underground stem modification. ग्लैडियोलस के अलावा हमें ये देखने को मिलता है जमीन खंड और कोलोकेशिया में भी मिलता है. हॉरिजॉन्टली नहीं ग्रो कर रहा है, ध्यान दे, वर्टिकली ग्रो कर रहा है, मैसिव होती है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है. नेक्स्ट बल्ब. बल्ब इज अ हाईली रिड्यूस्ड डिस्कॉइड स्टेम. फिर से स्टेम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. बल्ब हमको अनियन गार्लिक में इजीली देखने को मिल जाती है. अनियन का वो वाला पार्ट जो हम काट के निकाल देते हैं ऊपर वाला, वो होती है हमारी हाईली रिड्यूस्ड स्टेम यहाँ पे, जिसको हम बल्ब भी बोलते हैं. नेक्स्ट है राइजोम्स. राइजोम्स जो है दीज आर हॉरिजॉन्टली रनिंग अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. कॉर्म्स और राइजोम में मेन डिफरेंस नहीं यही है कि कॉर्म्स जो है दे वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, वाइल राइजोम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं. राइजोम्स के बेस्ट एग्जांपल में आप जिंजर और टर्मरिक को देखते हैं. नेक्स्ट स्टेम कटिंग. वी ऑल नो स्टेम कटिंग की हेल्प से हम प्लांट को प्रोपेगेट करा सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल जो है स्टेम कटिंग का हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो रोज का प्लांट है. रोज के प्लांट को हम सिंपल एक स्टेम कटिंग से हम नए प्लांट में ग्रो करा सकते हैं या फिर बोले कमर्शियली प्रोपेगेट करा सकते हैं. सो दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 29. So pungency in radish is due to option 1 is solanine, option 2 capsaicin, option 3 isothiocyanate, option 4 is calcium acetate. तो ये तो सबको पता होना चाहिए. रेडिश जो होती है या फिर हम बोले रेडिश के अलावा अनियंस या गार्लिक, इन सब में सल्फर कंपाउंड्स हमको देखने को मिलता है जिसकी वजह से पंजेंसी कॉज होती है. सो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे. आइसोथायोसाइनेट causes pungency in reddish. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार. सोलेनाइन क्या होता है? सोलेनाइन इज अ कलरलेस एल्किलोनॉइड फाउंड इन पोटैटोज. पोटैटोज में मिलता है हमको ये. कैप्सिसिन इज अ केमिकल कंपाउंड जो हमें मिलता है चिली पेपर्स बोले या फिर शिमला मिर्च बोले. बाकी चिलीज में भी मिलता है इसके अलावा एक पर्टिकुलर अमाउंट में, बट मेनली हम इसको कैप्सिकम से रिलेट करते हैं या चिली पेपर्स बोले. आइसोथायोसाइनेट हमने बात कर ही ली है. इट इज अ केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S देखने को मिलता है. नेक्स्ट है कैल्शियम एसिटेट. कैल्शियम एसिटेट जो होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड.
ये भी हमको मिलते हैं कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, आइसोथायोसाइनेट। Moving to question number 30. Mycorrhiza is an association between option 1 bacteria and fungi, option 2 algae and roots of higher plants, option 3 fungi and roots of higher plants, and option 4 is none of the above. So mycorrhiza जो है वो association between fungi and roots of higher plants, so option 3 is correct. हमने 30 क्वेश्चंस कुछ कवर कर लिए हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम 31 से फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके।